Assalamu alaikum, I'm Ryan Khan, and today we have a special video about unbinding. Today we unbind iOS 17.01, 17.02, 17, any latest iOS you can unbind without hardware. No need any device like P13, V1S Pro, no need any kind of device. You can unbind with brushing, unbind. The JC they release a new feature about unbinding. So we show the whole procedure. Do not skip the video. I'm not also skipping the video, not editing. Okay, so don't skip the video and follow me. How can we unbind without hardware any latest iOS? Note the one thing, like if you are in iOS 15 point something, like iOS 16.6, so you should upgrade your device to iOS 17, which which iOS SSH available, like iOS 17, 17.01, it's up to you. So I have 17.02, that's 12 Pro, and look, we don't have a factory unbind, no factory unbind. We're gonna unbind right now without hardware. Without hardware we can unbind. So there is a feature, read phone, and this is called brushing unbind. Notice one thing, like I have a 17.02, the version I have 17.02, so you can select the same version like 17.02. If you on 17.01 and you select the firmware 17.02, so you're not able to unbind. Okay, so you can select the same version. Check on this, start, brush, flashing and unbinding. Okay, so I have 17.02, so we must select the 17.02 iPhone 12 Pro 17.02. We select the firmware from 3U tool where you downloading place. Okay, I've set the firmware that's decompressed already. Okay, wait for the decompress because my firmware already decompressed, and now it's go to recovery mode. Recovery mode. First it's flush, then unbind, then encryption keys, all like IR code, lattice code, ambient distance sensor, they unbind. When it's unbind done, I'll show the next procedure how to perform. Notice one thing, do not unbind the user phone if they have a data in their phone. Do not unbind, okay, before backup their data, and then unbind with this procedure. If you unbind the user phone with this procedure, because this procedure flushing the whole firmware, the whole system, they upgrade, so you can lose the data. First backup the data and then unbind with this procedure. If you don't have a data, no need to backup, just simply unbind with this procedure. तो ये चीज़ समझ लीजिएगा कि वर्जन आपका सेम होना चाहिए. अगर आपके पास iOS 17 है तो iOS 17.01 है तो 17.01 firmware आप सेलेक्ट करोगे. अगर 17.02 है तो 17.02 आपने सेलेक्ट करनी, सेम वर्जन आपने सेलेक्ट करना है. अगर आपके पास iOS 15 है तो 15 की तो फ्लैशिंग इस टाइम मतलब SSH उसकी रिजेक्टेड है, अवेलेबल नहीं है. तो अपना वर्जन पहले अपग्रेड करें 17 पे. 16.6.1 भी इस टाइम वैलिड है, उस पर करें, आपकी मर्जी, जो वर्जन आपको अपग्रेड करना है तो वो अपग्रेड करें. उसके बाद सेम प्रोसीजर अप्लाई करें, लेकिन जो वर्जन आप अपग्रेड करें, लाइक जैसे आपने 17.02 कर दिया तो 17.02 ही आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा अनबाइंडिंग के लिए. 17.01 कर दिया तो 17.01 ही करना पड़ेगा. 17.01 पे आप 17.02 सेलेक्ट नहीं कर सकते, फिर आपकी अनबाइंडिंग नहीं होगी. और जो यूज़र का फ़ोन है, जैसे कोई आपके पास यूज़र आता है जिसका डेटा फ़ोन के अंदर ऑलरेडी है, वो अनबाइंडिंग इस तरह इससे मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इससे अनबाइंड करेंगे सारा डेटा आप लॉस करेंगे, क्योंकि तो पूरी फर्मवेयर फ्लश करेगा. उसके बाद जाके एनक्रिप्शन कोड सारी जो वो एनक्रिप्टेड कर देता है, लैटिक IR लैटिक वगैरह सारी एनक्रिप्टेड करता है फ्लशिंग के बाद. तो यूज़र का पहले डेटा बैकअप करें. अगर आपके पास डेटा नहीं है तो उसको फिर मुश्किल नहीं है, वो आप इससे अनबाइंड करें. कोई डिवाइस की ज़रूरत नहीं है. V1S Pro, V1S E, P13 किसी डिवाइस की नीड नहीं है. वीडियो स्किप ना करें. अगर वीडियो स्किप करेंगे, क्योंकि मैं खुद भी स्किप नहीं कर रहा, मैं आपको वन शॉट वीडियो दूंगा, मैं स्किप करूंगा, उसके बाद आपको प्रोसीजर समझ नहीं आएगी, क्योंकि एक छोटी सी ट्रिक है, इसके अंदर एक कॉम्प्लिकेशन है, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा. तो वीडियो मैं भी स्किप नहीं कर रहा, आप भी ना करें. अभी सिस्टम राइट हो रहा है, सिस्टम राइट के बाद फर्मवेयर राइट हो गई, उसके बाद सिस्टम राइट होगा. सिस्टम राइट होने के बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ क्या करना है. So don't skip the video. If you skip the video, okay, so you cannot understand the whole procedure. I'm not skipping to, okay. Let the phone flush, then I'll explain the next procedure, how to perform the next procedure. Now you can unbind any iOS without hardware.
No need to buy any device like Shine. They release their products, they release their update for unbinding. No need to buy any device. You can unbind without any device. And this unbinding support from XR to 14 Pro Max, any iOS. So we are waiting for the writing file system. After writing file system, then we do the next procedure. When it's done, then we bind the new JC Air speaker FPC in this device to showing you that's unbind real. मैं भी आपको एयरपीस रिबन भी बाइंड करके दिखाऊंगा, मतलब अनबाइंडिंग इसकी बिल्कुल रियल है। कोई हार्डवेयर की ज़रूरत आपको नहीं है, हार्डवेयर की नीड इसमें है नहीं। मैं आपको न्यू एयरपीस रिबन भी इसमें बाइंड करके भी दिखाऊंगा। वीडियो मैं खुद भी कट नहीं कर रहा, एडिट नहीं कर रहा, ताकि आप लोगों को समझ आए और स्किप करना नहीं वीडियो, क्योंकि इसके अंदर एक छोटी सी कॉम्प्लिकेशन है जो मैं आपके साथ अभी सॉल्व करूँगा। जैसे ही प्रोसीजर कंप्लीट होगा फिर मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका, तो स्किप नहीं करें। और आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी इनोवेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। और यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे मुझे फॉलो करें, और बाकी इंस्टाग्राम भी है मेरा, वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ हमारी लेटेस्ट अपडेट आती रहती है। तो नेक्स्ट स्टेप इसका, और नेक्स्ट स्टेप के बाद फिर हम सिंपली इसके साथ एयर स्पीकर एफपीसी बाइंड करते हैं। बैक कैमरा भी अनबाइंड करें, सारी अनबाइंड जो P13 के अंदर अनबाइंडिंग होती है, सारी चीज़ें वैसी सेम अनबाइंड करते हैं बगैर हार्डवेयर के। तो नो मोर हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है आज के बाद। किसी भी वर्जन को आप बगैर हार्डवेयर के अनबाइंड कर सकते हो। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, हमें भी प्रॉब्लम होती है लंबी वीडियो से, लेकिन क्या करें, क्योंकि अगर मैं इसको स्किप करूँगा और फास्ट फॉरवर्डिंग करूँगा उसके बाद फिर आपको शायद सही से समझ ना आए, तो इसलिए भले वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन हम इसको वन शॉट में करेंगे, कोई वीडियो कट नहीं करेंगे। आपके पास सिर्फ जेसी का प्लेटफॉर्म होना चाहिए। जेसी का प्लेटफॉर्म आपको ही पता फ्री है, इसमें कोई वो पैड नहीं है। और यहाँ पे रीड फ़ोन में ठीक है, आपके पास ब्रशिंग अनबाइंड आपके पास एक फीचर है न्यू, तो आपको बाकी किसी डिवाइस की नीड नहीं है, सिर्फ आपके पास जेसी का प्लेटफॉर्म होना चाहिए। नो नीड टू बाय एनी डिवाइस, ओके, यू शुड हैव अ जेसी प्लेटफॉर्म, देयर यू कैन सी द रीड फोन and brushing unbind, okay, brushing unbind, no need any device। हमारी प्रोफेशनल क्लासेस भी होती है, तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं हमें प्रोफेशनल क्लासेस। अभी ऑनलाइन भी हम शुरू करें प्रोफेशनल क्लासेस, हमारी 15 डेज़ की हमारी क्लासेस है, तो ऑनलाइन भी अभी स्टार्ट करेंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हो उसको भी। उसका लिंक हम शेयर कर देंगे आपको, जब स्टार्ट होगी उसकी टाइमिंग आपको शेयर कर देंगे। अभी हमारा एक और न्यू प्रोजेक्ट है जिस पे हम काम कर रहे हैं, बैटरी मैसेज पे और डिस्प्ले मैसेज पे, लेटेस्ट वर्जन के अंदर हमने फिक्स करना है इंशाल्लाह, तो फिर उसको भी हम क्रैक करेंगे, इसको भी। ऐसे बाकी डिवाइसों ने भी दिया, I2C ने भी और शाइन ने भी, लेकिन उसके लिए आपको डिवाइस लेनी पड़ेगी। लेकिन जैसी प्लेटफॉर्म के अंदर ये कि इसमें आपको डिवाइस की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डिवाइस इन जैसी प्लेटफॉर्म एंड अदर टूल दैट लाइक I2C एंड और शाइन, यू नीड दैट डिवाइस। सो लुक, it's already done, all the encryption code are unbind already, okay, but there's the next issue, okay. Your phone after the unbinding your phone in the recovery mode, then you flush your phone with 3U tool again, so that's a complication, okay. Now it's done, unbinding done, okay, so we are done. Now we go to 3U tool and just flush the same version or any update version, it's up to you. Flush your phone again, unbinding already done, so we gonna flush the phone again to extract the recovery mode. If you extract the recovery mode, you can, because this tool cannot fix the whole firmware,
It's just unbind. After unbind, the phone stuck in recovery mode. You can flash manually with 3U tool again. I'm just gonna flashing it again, and then we're gonna show you the unbind. Okay, so just wait for flashing. अनबाइंडिंग के बाद आपका फ़ोन रिकवरी पे स्टक हो जाएगा दोबारा। आप रिकवरी एग्जैक्ट भी करेंगे, उसके बाद भी रिकवरी पे रुका रहेगा, तो उसके बाद हमें 3U टूल से दोबारा वही सेम वर्जन 3U टूल से हम फ्लैश करेंगे। जब 3U टूल से फ्लैश करेंगे, अनबाइंडिंग हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। आप 10 दफ़ा फ्लैश करें, अपडेट करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम सिर्फ फ्लैशिंग का वेट करेंगे, दोबारा फ़ोन फ्लैश हो जाएगा। फ्लैश होने के बाद हम आपको अनबाइंडिंग दिखा देंगे, हमारी अनबाइंडिंग हो चुकी है। तो आप सिर्फ फ्लैशिंग का वेट करें, उसके बाद आप करें। और अगर बैकअप आपको मुश्किल हो रही तो फिर आप सिंपली P13 से ही करें। लेकिन अगर नॉर्मल फ़ोन आपका फ्रेश फ़ोन है तो उसमें फिर ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ यूज़र डाटा एरेज होता है। फ्लैशिंग ऑलमोस्ट एंड होने वाली है, ठीक है। फ्लैशिंग हो जाए उसके बाद फिर हम बाइंड करते हैं इसके साथ न्यू रेबेल एयर स्पीकर FPC की। कोई प्रोडक्ट ना ले ओशाइन की I2C की, क्योंकि ओशाइन और I2C आपको प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, डिवाइस के थ्रू आपको करना पड़ेगा, और इसके अंदर डिवाइस की ज़रूरत नहीं है। जैसी प्लेटफॉर्म में सिंपली आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म आपके बस फ्री है, बस उसमें ब्रशिंग अनबाइंड है, और ब्रशिंग अनबाइंड इजीली आप यूज़ करें, किसी डिवाइस की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू बाई एनी काइंड ऑफ डिवाइस लाइक ओशाइन I2C। ओके, दिस प्लेटफॉर्म फ्री, जस्ट ब्रशिंग अनबाइंड, द सेम प्रोसीजर एज आई डू। हम XR भी ट्राई कर चुके हैं, XR भी इस पर आप अनबाइंड, XR से लेके 14 Pro Max तक सारी डिवाइस हम लोगों ने ट्राई कर ली, सारी अनबाइंड हो सकती है, ठीक है। XR से लेके 14 Pro Max तक। और एक्टिवेट के बाद हम आपको शो करते हैं अनबाइंडिंग हो चुकी है इसकी। अब इसको करते हैं एक्टिवेट। एक्टिवेट के बाद फिर आपको अनबाइंडिंग शो करते हैं, और अनबाइंडिंग के बाद आपको एयर स्पीकर FPC भी बाइंड करके दिखाते हैं। चलिए फ़ोन को करते एक्टिवेट। तो ये देखिए हमारे पास रडार अनबाइंड, ये आप देखिए ओरिजिनल, डिस्टेंस अनबाइंड, एम्बियंट लाइट होके आपका ट्रू टोन अनबाइंड, हमारे पास ये सब कुछ अनबाइंड हो चुका है, ठीक है। अनबाइंड हो चुका है, सिर्फ फ़ोन एक्टिवेट हो जाए हम आपको बाइंड करके दिखाते हैं। और यहाँ पे हम अनबाइंडिंग डिटेल देखते हैं इसकी। अनबाइंडिंग डिटेल में आपके पास बैक कैमरा अनबाइंड, ठीक है, बैक कैमरा अनबाइंड, ट्रू टोन, एम्बियंट, हर चीज़ अनबाइंड, इवन LCD कोड भी अनबाइंड है हमारे पास। LCD कोड पे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, LCD कोड क्या चीज़ है, ठीक है, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो। रडार हमारे पास सारी चीज़ें अनबाइंड है, ठीक है। तो ये होगी हमारी अनबाइंडिंग डन विदाउट हार्डवेयर। अच्छा, लैटेक्स सेंसर और IR कैमरा, क्योंकि लैटेक्स सेंसर बहुत रेयर यूज़ में आता है, बहुत रेयर यूज़ में आता है, वो भी अनबाइंड इससे हो सकता है, वो भी कोई मुश्किल नहीं है, वो भी अनबाइंड हो सकता है, लेकिन वो बहुत रेयर यूज़ में आता है, कोई खास उसकी यूजिंग नहीं है। जब आप DH चिप आपकी शॉर्ट होती है तभी आपके पास लैटेक्स सेंसर, उसका डेटा आपको चाहिए होता है, अनबाइंडिंग चाहिए होती है, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि लैटेक्स सेंसर कैसे अनबाइंड करते हैं, इसी प्रोसीजर से। लेकिन जो मेन चीज़ हमारे पास बैक कैमरा, एयर स्पीकर FPC है, वो ईजीली इससे अनबाइंड हो चुका हमारा, ये आपको दिख रहा होगा ओरिजिनल, ठीक है। FPC के साथ करते हैं बाइंड, दूसरे इसके साथ करते हैं बाइंड। फ़ोन को डिटेक्ट करें, एक्टिवेट, डन। हमने दूसरी बाइंड कर दी, क्योंकि हमारे पास इसमें भी ख़राब आ जाती है, तो हमने दूसरी बाइंड कर दी।
अब हम चेक करते हैं इसका फेस आईडी। तो फेस आईडी हमारे पास क्या है, देखो हमारी रिबन बाइंड हो चुकी है, फेस आईडी नॉट अवेलेबल। हमारे पास फेस आईडी डॉट प्रोजेक्टर DDA चिप शॉट है, लेकिन हमारा काम हो गया, हमारी SHC अनबाइंडिंग हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक हो गया। हमारे पास ट्रूटून हमारे पास आ गया। तो इसमें इस फ़ोन के अंदर DA चिप शॉट है, जिसकी वजह से फेस आईडी आती है और अनेबल दोबारा अनअवेलेबल हो जाती है। तो मैं सिर्फ आपको चेक करवाना चाहता अनबाइंडिंग। ये देखो हमारे पास बाइंड हो चुकी है और हमारी ये होगी फेस आईडी, लेकिन इसमें नॉट अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि हमारे पास DA चिप इसकी शॉर्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये थी आज हमारी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में LCD कोड पे और 12 और 13 सीरीज़ की वाईफाई पे बनाएंगे। थैंक यू सो मच। लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें।